Sound. Hello, good morning students. Good morning to all of you. Hello, good morning students. Good morning to all of you. Hello, good morning students. Good morning to all of you. चलिए Hello, good morning students, good morning to all of you. Welcome in your physics class. Now I am starting your already started your exercise 5th C, question number 1 to 10. It is already over. Now 10th questions, I am again solving the 10th questions. Okay, so 10th questions exercise, this is the exercise of exercise 5th C, question number 10. Okay, 10th question is, a concave lens form an erect image of 1/3 the size of the object which is placed at a distance of 30 centimeter in front of it. Find the position of the image. Okay, the concave lens form an erect image of 1/3 of the size of the object. It means the size of the image is equal to 1/3 of size of object. Okay, यही तो यहाँ पे. Okay, it means I upon O, size of image and size of object is equal to 1/3. Okay, and the lens is placed at a distance of how much distance? It is in 30 centimeter. It means U is given here. U equals to minus 30 centimeter. Now find the position of the image. Now we have a relation between this one I upon O and U upon V. ठीक है, तो I upon O is equal to U upon V upon U. Okay, V upon U, like this way. So now just place the value, all the value here. I upon O is equal to 1/3 and V upon U is equal to V upon U, means minus 30. तो 3 1 जा 3, 3 10 जा 30. Okay, now cross multiply, so V equal to minus 10 centimeter. Okay, now the second part is find the focal length of the lens. Focal length, so we have a formula 1/f is equal to 1/v minus 1/u. 1/f is equal to 1/v, it is minus 10 minus 1 minus u, minus of u means minus 30. So 1/f is equal to minus 1/10, minus become plus, then 1/30. So when you solve this one, then you have, just take the LCM of 10 and 30, then it will be minus 10 into 3 into 3, then plus 1/30. Okay, 30. Then here is we multiply here by the कितने से मल्टीप्लाई किया? 3 से किया, तो 3 1 जा 3, but here minus, so take the minus here. Then 30 to 30 cancel, then 1 is here, only 1 is here. Okay, because we multiply here by 1, so 1, then it will be minus 3 plus 1, it is minus 2/30. Then when you solve this one, 1/f is equal to minus 1/15. This implies that f is equal to minus 15 centimeter. So this is the answer of this question. Is it clear? Okay, now next 11th questions.
क्वेश्चन नंबर 11, द पावर ऑफ अ लेंस इज +2 डायोप्टर, देन फाइंड इट्स फोकल लेंथ एंड स्टेट द काइंड ऑफ द लेंस. ओके, देन पावर ऑफ अ लेंस. तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू नो दैट व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस. ठीक है, व्हाट डू यू मीन बाय द पावर ऑफ लेंस. तो पावर ऑफ अ लेंस, suppose this is the lens, okay, and this is the incidence ray. This is incidence ray. So when a light is incidence on this lens, then after the refractions how much the light is bent. ठीक है, how much the light is bent by the this mirror is known as the power of a lens. It means the deviations produced by the lens, ठीक है, the deviations produced by the lens, ठीक है, इज नॉन एज द पावर ऑफ ए लेंस. कितना उसने डेविएशन प्रोड्यूस कर दिया है, किसके लिए, इंसिडेंस लाइट के लिए, दैट इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ लेंस. ओके, सो देखो, तो इट मींस पावर ऑफ अ लेंस. तो पावर ऑफ अ लेंस इज फैक्टर अफेक्टिंग द पावर ऑफ लेंस. क्या क्या उसमें फैक्टर अफेक्ट करेगा, थिकनेस ऑफ द लेंस. ठीक है, इफ द थिकनेस इज द मोर ऑफ अ लेंस देन इट विल बी बेंट it will be bent more the incidence ray. ठीक है, जितना ज्यादा थिकनेस होगा लेंस का, उसकी बेंडिंग पावर उतनी ज्यादा होगी. इट मींस उसका पावर उतना ज्यादा होगा. ठीक है, जनरली हम जो स्पेक्स यूज करते हैं, गॉगल्स क्या करते हैं, यूज करते हैं, तो जिसका जितना ज्यादा थिक क्या होता है लेंस होता है, उस पे उस लेंस की उतनी ज्यादा पावर होती है. इट मींस उसकी उतनी कम नजर है. ओके, चलिए, तो पावर ऑफ अ लेंस इट इज मेजर बाय द डायोप्टर and it is represented by the symbol of D, diopter D. तो diopter power of a lens P is equal to power of lens P is equal to क्या होगा, it is 1 upon F. 1 upon F. F is here focal length of the lens, and it is always in meter. Focal length is always in meter. So power of a lens is equal to 1 upon F, and F is always M. एंड द यूनिट ऑफ दिस वन इज डायोप्टर. ठीक है सर, इसका जो यूनिट होगा इट इज डायोप्टर. तो नाउ व्हाट इज द वन डायोप्टर, मुझे वन डायोप्टर को क्या करना है, यहाँ पे डिफाइन करना, इज इक्वल टू 1 अपॉन देन एफ इज 1 मीटर. एफ इज 1 मीटर. तो हाउ कैन वी डिफाइन द वन डायोप्टर. तो वन डायोप्टर वी कैन डिफाइन वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस. ठीक है, विच फोकस डिस्टेंस इज 1 मीटर. एक ऐसा लेंस, ठीक है, जिसकी फोकस डिस्टेंस 1 मीटर होगी, 100 सेंटीमीटर होगी, दैट इज कॉल्ड, ठीक है, उस टाइम हम बोलेंगे द पावर ऑफ अ लेंस इज 1 डायोप्टर. ओके, एंड यू नो वेरी वेल द फोकल डिस्टेंस f फॉर द कॉन्वेक्स लेंस. इफ द लेंस इज कॉन्वेक्स देन फोकल लेंथ इज ऑलवेज, यू नो वेरी वेल, दैट इज मैक्सिमम मींस, ठीक है, मैक्सिमम टाइम इट इज पॉजिटिव. ठीक है, देयर इज ओनली वन रेयर केस on which the focal length become the negative. ठीक है, जब क्या होगा, फोकल क्या होगा, दैट इज नॉट एक्चुअल फोकल. जब क्या होता है, जब हम उसको क्या रखते हैं, बिटवीन द फोकस एंड पोल के बीच में रखते हैं, तो यू नो दैट टाइम द इमेज इज फॉर्म ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. ठीक है, तो हमें ऐसा लगता है कि उस टाइम पे जो रेज मिल रही है वो लेफ्ट हैंड साइड पे मिल रही है, बट दैट इज नॉट द एक्चुअल फोकल. द एक्चुअल फोकल ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस इज ऑन द राइट हैंड साइड. सो फोकल लेंथ इज इक्वल टू पॉजिटिव. So if the focal length is here positive, then we can say that the power of a lens for the convex lens is always positive. So same way for the concave lens, the power of a lens, ठीक है, because it is negative, so that time if this is negative, then power will be negative. If this is positive, then power will be positive. ठीक है, तो whenever there is right, the power of a lens is +1 diopter, तो it means this is the power of a convex lens. This is the power of a convex lens. ठीक है, अगर यहाँ पे लिखा होगा 2 diopter, तो what do you mean by the this terms +2 diopter? ठीक है, तो let us see understand. P is equal to 1 upon F. तो the value of power is here how much, +2D. तो 2D is equal to 1 upon F. Is it clear? चलिए F, तो F निकालो यहाँ से, F इक्वल टू 1 अपॉन 2 एंड इट इज इन मीटर. तो वैल्यूज ऑफ दिस वन, तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं इसको, 1 अपॉन 2 मीन्स 0.5 मीटर.
इट मीन्स क्या कंक्लूजन निकला, द पावर इफ द पावर ऑफ ए लेंस इज +2 डायोप्टर, it means we are using a lens which is focal distance is 0.5 meter. We are using a lens which is focal length is 0.5 meter. Yeah, we can say that if the focal length is 0.5 meter, so that time the power of a lens will be +2 diopter. ठीक है, it is only for the convex lens, and on the concave case here is only minus. यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, बाकी डेफिनेशन क्या रहेगी, सेम रहेगी. आई थिंक यू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट. नाउ आई एम जस्ट टेकिंग द क्वेश्चन नंबर 11 which is based on the concept of the diopter. Question number 11. Okay, all questions are very easy from 11 to 20, 11 to 18. The power of a lens is +2 diopter. Already, ठीक है, ये ऑलरेडी सॉल्व हो गया. अभी चलिए क्वेश्चन नंबर 12. Express the power with the sign of a concave lens of focal length is 20 centimeter. Okay, 12 questions. F is equal to 20 centimeter and 20 centimeter. Express the power with the sign of a concave lens of focal length 20 centimeter. And this is the concave lens. You know very well, for the concave lens, F is equal to -20. It is negative. ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस इज नेगेटिव. सो एफ इज इक्वल टू -20 सेंटीमीटर. सो पावर ऑफ अ लेंस, ठीक है, हमें पावर ऑफ लेंस कैलकुलेट करना है. तो 1 अपॉन, तो व्हेनेवर वी आर कैलकुलेटिंग द पावर ऑफ अ लेंस, दैट टाइम फोकल लेंथ मस्ट बी इन मीटर. तो जस्ट चेंज दिस 20 सेंटीमीटर इनटू मीटर, जस्ट 20 डिवाइडेड बाय 100, देन इट विल बी 0 to 0 कैंसिल, एंड इट अगेन कितना हो जाएगा सर, 0.2 मीटर, 0.2 मीटर. ओके, चलिए सॉल्व करो. तो क्या हो जाएगा, 0.2 मीटर. तो सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ एंड 1 अपॉन कितना है सर, -0.2. और इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, 10/2 एंड इट विल बी 5 डायोप्टर. ठीक है, -5 डायोप्टर. तो दिस इज द साइन विद द पावर ऑफ ए लेंस. इज इट क्लियर? Next question is 13 question. The focal length of a convex lens is 25 centimeter. Express its power with sign. Very easy question. Then 14. The power of a lens is -2 diopter. Find the focal length. 14 questions. थोड़ा सा अलग है but very easy. ठीक है, 14 question is the power of a lens is -2 diopter. Power of a lens is -2 diopter. Find its focal length. तो जस्ट B इक्वल टू 1 अपॉन एफ. ठीक है, यहाँ पे -2D है, इज इक्वल टू 1 अपॉन एफ, एंड नाउ वी हैव कैलकुलेट हियर एफ. तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा सर, -2, बट हियर क्या हो जाएगा, ये मीटर हो जाएगा, क्योंकि वी आर कैलकुलेटिंग नाउ दिस टाइम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, देयर इज डायोप्टर. नाउ दिस टाइम देयर इज डायोप्टर. ठीक है, तो वी कैन से दैट द 1 अपॉन डायोप्टर इज इक्वल टू सीधे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा. तो इसको जब सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 0.5 मीटर. ठीक है, और दिस इज इन नेगेटिव, सो फोकल लेंथ आल्सो इन नेगेटिव. ओके, ये हो गया मीटर में. यू कैन चेंज इट इनटू सेंटीमीटर में चेंज कर सकते हो आप इसको. ओके, क्वेश्चन नंबर 15. द मैग्निफिकेशंस बाय अ लेंस इज -3. Name the lens and state how are you and V are related to each other. तो magnification, we have a formula for the magnifications. M equal to V upon U, and M is here negative. Minus of 3 equal to V upon U. तो क्या होगा, नेगेटिव किसके लिए होता है, M is negative forward if. ठीक है, तो if M is negative that times the image is real image. इमेज क्या होगी, रियल इमेज होगी. और रियल इमेज फॉर्म बाय द, ऑलवेज फॉर्म बाय द, किसके द्वारा फॉर्म होती है, कॉन्वेक्स लेंस के थ्रू क्या होती है, फॉर्म होती है. तो व्हेनेवर देयर इज मैग्निफिकेशन इज नेगेटिव, दैट टाइम्स मींस इट इज द मैग्निफिकेशंस ऑफ ए कॉन्वेक्स लेंस. किसका हो जाएगा, कॉन्वेक्स लेंस का हो जाएगा. ओके, नाउ द रिलेशन इज, व्हाट इज द रिलेशन हियर. सो इफ यू वांट टू कैलकुलेट द V, तो V विल बी -3 ऑफ U. ठीक है, क्या हो जाएगा, -3
3 ऑफ यू, ठीक है, और लेंस कौन सा हो गया, कॉन्वेक्स लेंस हो गया, ओके। चलिए सर, नेक्स्ट 17 क्वेश्चन। A concave lens has a focal length 30 centimeter. Find the position and the magnifications of the image for an object placed in front of it at a distance of 30 centimeter. State whether the image is real or virtual. Seventeen question. Concave lens has focal length 30 centimeter. Concave lens, so f equal to minus 30 centimeter. जैसे concave word यूज होगा तो आपने अंडरस्टैंड कर देना उसको एकदम से कि उसकी जो फोकल लेंथ होगी वो कितनी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, माइनस 30 सेंटीमीटर, ओके। नाउ फाइंड द पोजिशन एंड द मैग्निफिकेशन। हमें क्या निकालना है, फाइंड द पोजिशन ऑफ द इमेज। इट मीन्स वी हैव टू कैलकुलेट हियर v एज वेल एज मैग्निफिकेशन मीन्स m फाइंड करना है ऑफ द इमेज फॉर एन ऑब्जेक्ट place in front of it at a distance of 30 centimeter. Again u is equal to 30 centimeter and object is always placed on the negative side. This is the which type of lens is concave lens is, this is the concave lens and the object is placed always on the left hand side. So the distance of the left hand side always take as a negative. So u equal to minus 30 centimeter. So what you have to calculate here, the position of the image v calculate करना. Now apply the formula 1 upon f is equal to 1 upon v minus 1 upon u. तो 1 upon f is already minus 30 is equal to 1 upon v you have to find here. So minus 1 upon minus of 30. Is it clear? तो चलिए सर, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे, इसको जब हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे,
साउंड स्टूडेंट्स प्लीज वेट देयर इज प्रॉब्लम, साउंड प्रॉब्लम। ओके, तो क्वेश्चन क्या था? यस, क्वेश्चन नंबर 17, f इज गिवन हियर, u इज गिवन हियर। तो नाउ इन दिस क्वेश्चन वी हैव टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f इज हियर। ओके, f मुझे कैलकुलेट करना है, तो हाउ कैन यू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ f? v इज हियर, v कैसे कैलकुलेट होगा? तो 1 अपॉन v इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दिस वन ना, तो माइनस 1 अपॉन क्या हो जाएगा? 1 अपॉन v, जस्ट यहाँ रखो, तो 1 अपॉन f, ये क्या हो जाएगा? माइनस, ये माइनस है ना, प्लस हो जाएगा। 1 अपॉन u इज इक्वल टू 1 अपॉन v। ओके, नाउ जस्ट प्लेस द वैल्यू हियर, ऑल द वैल्यू हियर। सो 1 अपॉन f, व्हाट इज द 1 अपॉन f इज हियर? माइनस ऑफ 30, देन 1 अपॉन u कितना है? 1 अपॉन u कितना है सर यहाँ पे? माइनस ऑफ 30। ओके, ये प्लस है। ओके, इज इक्वल टू 1 अपॉन v, तो माइनस क्या हो जाएगा? दिस इज प्लस, दिस इज माइनस, तो माइनस प्लस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो 1 अपॉन 30, ठीक है, ऑफ माइनस, यही तो हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, बिकॉज डिनोमिनेटर आर सेम। सो माइनस वन अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, तो माइनस ऑफ 2 अपॉन 30 इज इक्वल टू 1 अपॉन v। अब क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 15 जा, तो इट मीन्स माइनस 1 अपॉन 15 इज इक्वल टू 1 अपॉन v, और v इज इक्वल टू माइनस ऑफ 15 सेंटीमीटर। तो दिस इज द पोजिशन ऑफ द इमेज, v इक्वल टू माइनस 15 सेंटीमीटर। ओके, एंड इन नेक्स्ट पार्ट स्टेट वेदर द इमेज इज रियल और वर्चुअल। तो देखो क्या होगा? वर्चुअल होगा या रियल होगा, ये मुझे यहाँ पे क्या करना है? कैलकुलेट करना है। ओके, सो नाउ नेक्स्ट इज मैग्निफिकेशन फाइंड करना। तो मैग्निफिकेशन फॉर्मूला क्या होगा? m इक्वल टू v अपॉन u। तो m इक्वल टू v, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ v इज हियर? माइनस ऑफ 15, ठीक है, और u कितना है? माइनस ऑफ 30। तो इसको सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा? 15 1 जा 15, 1 अपॉन 2, इट मीन्स 0.5, ठीक है, मैग्निफिकेशन इज 0.5। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, फाइंड द पोजीशन एंड द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर इज द इमेज इज इरेक्ट। ठीक है, और मुझे निकालना क्या है? क्या निकालना यहाँ पे? फाइंड द पोजीशन ऑफ द इमेज। सेम क्वेश्चन, यहाँ पे कौन सा लेंस था? कॉनकेव लेंस था। क्वेश्चन नंबर 18 में कौन सा है? कॉन्वेक्स लेंस है। तो हम क्या करेंगे? सेम फॉर्मूला वी हैव टू अप्लाई दियर, 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू, और बाय दिस वे वी कैन calculate the position of the image. Okay, now it is your homework, try to solve these questions, question number 18, and complete the work, complete this exercise. Okay, and send your work in the WhatsApp group. So this chapter is finished. So in next class we will be start the new chapter. So thank you for watching this video. Thank you very much.